اچھا حافظ صاحب ایک چیز ہے مجھے ابھی آج میں نے تھوڑا سا ایک سٹیٹس وغیرہ دیکھے ہیں. پہلی اننگ میں مجھے لگا ہے کہ جہاں تک سپنرز نے ڈومینیٹ کیا ہے اور دوسری اننگ میں فاسٹ بولر جو ہے وہ اس پچ کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے لگ گئی ہے. ابھی بھی جو اوور کاسٹ کنڈیشن ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا لیفٹ آرم جو پیسر ہیں امیر حمزہ وہ ان کو تھوڑا سا تنگ کریں گے خرم شہزاد کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پچ میں اب تھوڑا سا فاسٹ بولرز کے لیے ہیلپ ہونے لگ گئی ہے. جس طرح انہوں نے آؤٹ کیا حسن محمود نے, پھر اس کے بعد جو ان کے دوسرے بولر ہیں, تو پاکستانی بیٹرز نے دیکھیں آ بیل مجھے مار والا حساب کیا ہے. محمد رضوان نے بھی, شان نے بھی, سائم ایوب نے بھی ایون مطلب انہوں نے باہر جاتی گیندوں کو ٹیسٹ میچ میں یہ جو آپ نے بات کی ہے بالکل 100% کریکٹ ہے حافظ صاحب کے جو انٹینٹ والا رول ہے نا یہ ان کو تب لگانا چاہیے جب ان کے پاس ایک موٹر آ جائے گی. تب تک یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اگر بیس بال کرکٹ کھیلنی ہے تو اس کو کم از کم آپ اس لیول پر لے کے جائیں. آپ کی سلیکشن کیا ہے, آپ نے سلیکشن کمیٹی سے جب آپ نے پوچھنا ہے تو انہوں نے کہنا جی یہی ہمارے پاس لاٹ رہ گئی ہے. قادر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. حافظ صاحب چاہتا ہوں خواجہ صاحب یہ جو سلیکشن کمیٹی ہے یہ سلیکشن کمیٹی تھوڑی ہے. معذرت کے ساتھ وہ دو اس میں کرکٹر ہیں, ایک پاکستان کے کپتان ہے, یہ تو کلیکشن کمیٹی ہے. یہ تو اپنے ہر مہینے میں اپنے یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے وہ پورا کرتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی ہے فاسٹ بولرز کی اور سپنرز کی, دیکھیں پاکستان کے فاسٹ بولرز نے آؤٹ کیے, پچ دونوں کے لیے مددگار ہے. اس میں فاسٹ بولرز کو بھی مدد مل رہی ہے, اس میں سپنرز کو بھی مل رہی ہے. اور یہ اگر سیکنڈ اننگز میں آؤٹ نہیں کرتے ہیں نا تو یہ ان کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا, کیونکہ اس میں شارپ ٹرن ہو رہا ہے. اب سپنرز کے لیے اور زیادہ مددگار ہے یہ پچ. یہاں پر مہدی حسن مراز نے جیسے بالنگ کی ہے اس کے بال شارپ ٹرن ہوتے رہے ہیں, اور اس پچ کو کچھ نہ کوئی کہے یہ پچ نے فاسٹ بالرز کو بھی مدد دی ہے, سپنرز کو بھی مدد دی ہے. اس میں باؤنس بھی ہے, اس میں آف دا پچ بھی آپ کو موومنٹ ملتی ہے, اس میں سپن بھی ہو رہا ہے. حافظ صاحب مجھے تو لگتا ہے مدد صرف بنگلہ دیش کو ملی ہے, پاکستان کو بالکل نہیں ملی ہے, نہ بیٹنگ میں نہ بالنگ میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں نا کھانے کے لیے, تو کھانے والے نے میزبان نے آپ کو دعوت کے لیے تو بلا لیا کہ آپ آئیں, اچھا کھانا ہے, 25-30 ڈشز ہیں, آپ اس سے لطف اندوز ہوں, لیکن آپ کو جانا تو پڑے گا نا کھانا اپنا پلیٹ میں لینے کے لیے, اور پھر اس کو کھانے کے لیے بھی آپ کو حرکت کرنا پڑے گی. اب یہ تھوڑا ہے کہ سب چیزیں وہ خود ہی خود ہو جائیں, آپ بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ کر دیں کہ لو جی کھانا آ گیا کھا لو, کھانا آ گیا تو اڑا پورا ہو گیا, تو یہ نہیں ہوتا نا. بالکل صحیح بات ہے حافظ صاحب, یہ سب چیزیں بہت دیر سے ہو رہی ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں وہاں پر بس مشکلات ہی نظر آ رہی ہے. حافظ صاحب کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. قادر یہیں سے کنٹینیو کروں گی. جیسے حافظ صاحب نے انہوں نے کہا کہ ایک مسکراہٹ نظر آ رہی تھی بنگلہ دیش کے بالرز کے اوپر. آپ کو یاد ہے جب پاکستان اپنی سیریز کھیل رہا تھا انگلینڈ کے ساتھ ورلڈ کپ سے پہلے, اس وقت جب پاکستان کے بیٹرز کو انگلینڈ آؤٹ کر رہا تھا وہ بھی ہنس رہے تھے. یہ سیم چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. جب بات ہنسنے کی نہیں ہے, ہم نے اپنا مذاق خود بنایا پوری دنیا. پہلے ہم یو ایس اے سے ہارے ورلڈ کپ میں, T20 میں, لیکن ہم لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم لوگ ہمیشہ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ غلطیوں پر غلطیاں دہراتے رہتے ہیں. دیکھیں ٹیم میں انا کا مسئلہ ہو, پلیئرز کی آپس میں رنجش ہو, وہ ایک سائڈ پہ, لیکن جب آپ کھیل رہے ہیں نا تو آپ کو 25 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے. آپ لوگ 25 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں. آپ کو 25 کروڑ عوام بھی دیکھ رہی ہے, پھر ساتھ آپ کو 1.5 سے 2 ارب آبادی وہ دیکھ رہی ہے جو کرکٹ لورز ہیں, جنہوں نے کرکٹ پر نظریں رکھی ہیں. پوری دنیا ہنس رہی ہے, گل کرسٹ سمیت جو دیگر جو سابق کرکٹرز ہیں وہ ہنس رہے ہیں کہ یار ان کو ہوا کیا اچانک. مطلب پاکستان کی کرکٹ اتنی بھی بری نہیں تھی. پاکستان کی کرکٹ نے جس طرح بڑے بڑے ٹورنامنٹس میں اچھے لوہے منوائے ہیں, پاکستان کے فاسٹ بولرز کو کہا جاتا تھا پوری دنیا کے سب سے اچھی پیس بیٹری ہے وہ پاکستان کے پاس ہے, جو پیس سٹاک ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. اب کیا ہوا کہ پاکستان, آپ دیکھیں شاہین شاہ افریدی, نسیم شاہ, 2 مین فاسٹ بولرز, آپ تجربہ کار فاسٹ بولرز کو نہیں باہر کر سکتے. یہ شان مسعود یا پھر شامل ہی نہ کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ شان مسعود صاحب بھی ایک سائنسدان ہے. شان مسعود صاحب آج یہ تجربے ہو رہے ہیں پاکستان کرکٹ پہ. یہ پاکستان کرکٹ پہ مختلف جو. قادر مجھے ایک بات بتائیں, خرم شہزاد نے 6 وکٹس لی, 5 لی, 4 لی, 3 لی, جتنی بھی لی, ہمیں ان وکٹس کا کیا فائدہ جب ہم نے لنچ بریک کے فوراً بعد ایسا برڈن اپنے اوپر لے لیا ہے, ایسی پریشانی اپنے پہ لے لی ہے کہ ہم گھبرا گئے اور ہم نے کہا یہ لیں آپ کر لیں رنز, ہمیں نہ کچھ کہیے گا, ہمارے پہ نہ شاٹ مار دیجیے گا. چیز سمجھ نہیں آتی ہے, محمد رضوان اسی بال سے کھیل رہے ہیں جس بال سے بابر اعظم, سائم ایوب, عبداللہ شفیع, شان مسعود, سعود شکیل کھیل رہے ہیں.
मोहम्मद रिजवान ही क्यों रन्स कर रहा है भाई, सलमान अली आगा भी टिका है, खड़े हुए हैं ना, हाँ। समझे हैं फील्ड को भाई, क्यों वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं रवायती, हाँ। जो अपनी उनकी गेम है। इनको दिमाग में बाबर आजम को 110% यही होगा मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, हाँ। जब एक प्लेयर एक बड़ा नाम वो जब परफॉर्मेंस नहीं देता, उसके दिमाग में आगे बॉलर को नहीं वो देख रहा होता, उसके दिमाग के बैक एंड पे चल रही होती हैं चीजें कि भाई मैं इससे आउट हो गया तो पूरी दुनिया क्या करेगी। ये वही बात है ना जो दिनेश कार्तिक ने रिसेंटली की थी। दूसरी चीज अब्दुल्ला शफीक वो भी इसी तरह दिमागी प्रेशर का शिकार है। आप जब तक प्लेयर को ये नहीं कहेंगे ना कि भाई आपकी जगह को कोई मसला नहीं है, लोगों को बोलने दें, प्लेयर आराम से इजी होकर अपनी क्रिकेट खेलता है। दूसरी चीज ये है कि देखें जैसन गिलेस्पी बड़े साइंसदान है, शान मसूद साहब छोटे साइंसदान है, ये सारे न्यूटन और अस्तु जो है ना हमारी टीम को जो है ना वो उनका जो मोराल है ना वो डाउन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके मोराल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और आप देखें जब आपके दूसरी चीज है आपके स्टेडियम्स भरे नहीं हुए, जब आपके स्टेडियम्स भरे नहीं ना होते उस वक्त आपका मोराल ऑटोमेटिकली डाउन होता है। क्लोज डोर में इसमें और क्लोज डोर में कोई फायदा मतलब फर्क नहीं है। आप क्लोज डोर करवा रही हैं, 5-7 बंदे बैठे हैं, कितनी को आवाज वो चीख लेंगे। आपकी क्राउड का प्रेशर होता है, आपके क्राउड का मोराल बूस्ट अप करने, आपका जो मोराल बूस्ट अप नहीं लगा सकते कान में कोई वो। देखिए जब हम बाहर जाते हैं इंग्लैंड में या उधर, तो वो टेस्ट मैच में ना एक रेडियो देते हैं हमें, तो वो रेडियो हम कान पे लगाए कमेंट्री सुन रहे होते हैं। वो सारों को मेरे लगता है कि 11 खिलाड़ियों को ना वो दे देना चाहिए। कादिर हम हर चीज प्रेशर पे नहीं डाल सकते, इसे ये कोई छोटी गेम नहीं है, क्रिकेट इज अ बिग थिंग और इसके साथ बहुत से लोग रिलेट हैं, हमारी आवाम रिलेटेड है। बाबर आजम को हमने थ्रू आउट टेस्ट मैच में देखा है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आज भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। और मोहम्मद वसीम ने भी प्रीवियसली अभी रिसेंट स्टेटमेंट दिया है कि बाबर आजम को उन्होंने लेबल किया एज अ वेरी स्टबर्न पर्सनालिटी। अब वो हमें नहीं पता अंदर की क्या बातें हैं, वो तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन बाबर आजम परफॉर्म आखिर क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए हर एक बड़े प्लेयर पे बैड पैच आता है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखिए विराट कोहली पे 3 साल आया, हाँ। विराट कोहली पर 3 साल आया, उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, आया परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट की। बड़े प्लेयर को एक मैच में कमबैक चाहिए होता है, हर प्लेयर पर आता है, इसमें कोई किसी का हाथ नहीं होता। जब आपके बैड पैच चल रहा होता है आपसे मुसलसल गलतियां होती हैं, हाँ। आप वही शॉट दोहराते हैं। T20 वर्ल्ड कप में आपको याद होगा बाबर एक मरतबा एक शॉट पे आउट हुए, दूसरी पे भी उसी आउट हुए। बिल्कुल ये चीजें देखनी चाहिए। अब वो उनकी आप देखें कि उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट स्टार्ट कर दी है, उन्होंने मार धाड़ स्टार्ट की है, आपने आपके बॉलर्स पे प्रेशर लाना है, वो छक्के चौके लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं कि आपके बॉलर्स बैकफुट पे जाएं, आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ आए, वो मारने एग्रेसिव तरीके से खेलें, आप पे प्रेशर हो। आप पे प्रेशर क्यों है जी? आपने जनाब टारगेट थोड़ा दिया। जब आप टारगेट सेट करते 300 से, आखिरी दिन होता तो आप 250 से 300 रन भी देते उन्हें, तो उन पे प्रेशर होता, वो फिर सोच समझ के खेलते और गलतियां करते। अब गलतियां आपसे होंगी, आपने फील्डिंग, आप शुक्र करें रिजवान का क्या ड्रॉप हो गया पहली बॉल पे, नहीं तो आपका ये भी नहीं होना था स्कोर जो आपका हो गया। भाई इनके लिटन दास ने इससे पहले 191 का स्कोर किया था, उसके बाद उन्होंने 138 का किया, 170 कुछ भी उन्होंने किया। हाँ, ये अभी पिछले उनके लिए ये स्कोर कोई बड़ी बात नहीं है। आपके रिजवान और सलमान अली आगा इस नंबर पे, लिटन दास और वो आते हैं मेहदी हसन मिराज, अच्छा। ये इन्होंने ही 26 पे 6 आउट थे, ये 2 आए, इन्होंने स्कोर किया। अगर आपके ये 2 खिलाड़ी भी आप आउट कर लेते, वही मीरब वाली बात कि आप आते हैं लंच ब्रेक के बाद और उस वक्त आप डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। मतलब यही चीजें बाबर आजम गलतियां दोहराते रहे। जब हम उनके बारे में कहते रहे कि जब वो एग्रेसिव होते हैं, जब विकेट्स आपको मिलती हैं, तो आपको फिर आगे उन पे दबाव डालना चाहिए, हाँ। आपको इजी नहीं होना चाहिए। जब आप इजी होते हैं तो आप पे प्रेशर आता है, और आप पे प्रेशर जब आता है तो उस वक्त इसी तरह की सूरत हाल होती है। खरगोश और कछुए वाली कहानी पढ़ाएं। देखिए मीरब, हमारा मसला सिर्फ ये है कि हमारे जो साइंसदान है ना, वो हमारे प्लेयर्स जो ओरिजिनल यही प्लेयर थे, पिछले जो टेस्ट मैचेस हुए हैं उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, यही प्लेयर थे। अब्दुल्ला शफीक भी खेलता रहा, इमाम को इन्होंने बाहर किया, अना की वजह से बाहर किया क्या हम अपना बंदा जो है वो इसको शामिल करा रहे हैं, पसंद नापसंद जो है ना उनके चक्रों में इनको निकलना पड़ेगा। लेकिन कादिर इमाम ने क्या ही किया है टेस्ट में गुज़श्ता कुछ अरसे से। चाहे जो भी लेके आए उसने भी क्या ही कर लिया। मेरा अब्दुल्ला शफीक जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उनसे तो काफी हद तक बेहतर उनकी परफॉर्मेंसेस थी। आप देखें साइम अयूब को इन्होंने इतने चांसेस दिए हैं कि उसको उसका मोराल है वो इन्होंने खुद जानबूझ के डाउन किया, गला घोट दिया उसका। बिल्कुल। हुरैरा, अब ये 2 टेस्ट मैचेस हैं, हुरैरा किधर जाए?
वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देता आया बेचारा, वो दरवाजे खड़खड़ा खुद मेरिट पे आया, शाहीन्स में परफॉर्मेंस दी, 200 मारा उसने शाहीन्स में जाके ऑस्ट्रेलिया में, वो कैसे बेचारा है। लेकिन फिर कहते हैं जी बच्चा है, अभी उसको टीम के साथ रहना चाहिए, सीखना चाहिए। इस तरह करेंगे तो आपके बैक साइड पे, आपके जो डोमेस्टिक पे, अहमद शहजाद ने बिल्कुल ठीक बात की है कि आप लोग जब अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इज्जत नहीं देंगे तो वो बेचारे इसी तरह ही डिसहार्ट होंगे और अमेरिका जाते जाएंगे। वहां पर समी असलम इतना बड़ा टैलेंट था, इतना अच्छा बैट्समैन था पाकिस्तान की हिस्ट्री का, लेफ्ट हैंडेड ओपन बैट्समैन थे, उन जैसा ओपनर भी नहीं आता इनके पास। समी असलम छोड़ के चले गए, एहसान आदिल छोड़ के चले गए, मुतअद्दिद कैरेक्टर्स हैं जिनकी अब मिसाल हमारे पास है। अगर आप प्लेयर्स को मौका उसकी अच्छे टाइम पर नहीं देंगे, आप बुरे वक्त में आप जो है ना, जब मोहम्मद अली साहब बूढ़े होने लगे हैं तो आप उनको टीम में उठा के ले आए। ताबिश के साथ भी, ताबिश खान जो थे कराची वाले, उनके साथ भी आपने इसी तरह ही किया कि ताबिश खान परफॉर्मेंस जब दे रहा, आप देख लें उनका वक्त जाया हो रहा है। देखिए रिसेंटली कहा है कि वक्त जो है वो प्लेयर्स अपना खुद भी जाया करते हैं कभी कभी। आपके प्लेयर्स जो है ना वो खुद भी सीरियस नहीं होते हैं। कादिर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी उस्मान कादिर से रिलेटेड। उन्होंने डॉक्टर नजीब का कहा कि मेरा जो है वो नुकसान करने वाले वो हैं। डॉक्टर नजीब वाहिद डॉक्टर नहीं है जिनसे बहुत सारे प्लेयर सेटिस्फाइड थे। देखें वो भी एक रस्तू थे पाकिस्तान टीम में। अब ये साइंसदान इकट्ठे हुए हैं, मैं इनको प्लेयर नहीं कहता या मैं इनको मैनेजमेंट नहीं कहता, ये साइंसदान है। ये अपने अपने जो उनके फार्मूलाज है ना, उनके तजर्बे कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर। पहले गैरी ने किए T20 वर्ल्ड कप में, अब जैसन गिलेस्पी की बारी है, शान मसूद की बारी है, पहले बाबर और गैरी करते रहे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। आपने डॉक्टर नजीब की बात की है ना, तो डॉक्टर नजीब ने मुतअद्दिद खिलाड़ियों के साथ इंजरी के मामले पर बड़ा जो है वो खतरनाक काम किया, और उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं था प्लेयर्स के साथ। प्लेयर्स ने मुतअद्दिद मरतबा उनसे नाराजगी का भी इजहार किया, उनकी अच्छे तरीके से रिकवरीज भी नहीं हुई। वो कहते तो हैं, लेकिन जो हमें सोर्सेज बताते हैं वो कहते हैं कि प्लेयर्स इनके साथ खुश नहीं थे। उस्मान कादिर की जो फिंगर इंजरी का जो मामला था, जो हुआ था, क्रैक हुई थी, उसको भी उसने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। आप देखें, एक प्लेयर को जब आप बुलाते हैं ऑस्ट्रेलिया से और आप उनको कहते हैं कि आप हमारे पास आए, आप खेलें। जब इनके वालिद साहब की डेथ हुई, अब्दुल कादिर मरहूम की, उसके बाद एहसान मानी थे आई थिंक वहाँ पर चेयरमैन, तो उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने टीम में शामिल हुए। उस्मान कादिर अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि उनकी जो लाइन लेंथ थी वो अच्छी नहीं थी उस टाइम पर। अब उन्होंने बहुत बेहतर कर लिया, लेकिन उनको चांसेस नहीं दिए जा रहे हैं। आप देखें, अहमद शहजाद जो मर्जी है सारा कुछ है, उन्होंने रन्स किए डोमेस्टिक में, आपने उनको पीएसएल में मौका नहीं दिया। उमर अकमल पीएसएल में मौका नहीं दिया। जब आप प्लेयर्स को ऐसे बैकफुट पे करते हैं तो फिर प्लेयर्स ऐसे ही आपके जो है ना वो अगेंस्ट जाते हैं, और फिर प्लेयर्स डिसहार्ट होकर आते नहीं है क्रिकेट में वापस। हसन अली की इंजरी चल रही है, उसके साथ एहसान उल्लाह जो हमें सोर्सेज बताते हैं, एहसान उल्लाह के वालिद आए, तो एहसान उल्लाह के वालिद से मैंने बात की कि जी उसकी इंजरी का क्या मामला है। उन्होंने कहा जी खुदा का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, चेयरमैन से अपील करता हूँ कि उसको स्वाद से जो है वो इधर बुलाएं, वो वहां पर सीरियस नहीं कर रहा रिहैब। एहसान उल्लाह ने अपने वालिद को उन्होंने जो है नफी किया। उन्होंने कहा जी मैं वो एक बंदे का बयान आया था, मैं देख रहा था टीवी पे, तो वो झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तो मेरा रिहैब बिल्कुल ठीक जा रहा है। जब प्लेयर अपने साथ सीरियस नहीं होता ना, उस टाइम आपके ये रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, आपके मुतअद्दिद प्लेयर्स फिटनेस टेस्ट का रोला डाला हुआ जी, फिटनेस टेस्ट किधर हुए? अभी तक नहीं हुए। डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर नहीं हुए ना। आप देखें, मीरब अभी तक फिटनेस टेस्ट नहीं लिए गए। किधर है वो साइंसदान शान मसूद साहब जो कहते थे फिटनेस पे कंप्रोमाइज नहीं होगा? किधर है वो जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन जो कहते थे फिटनेस पे कंप्रोमाइज नहीं होगा? करें ना, क्यों नहीं किया फिटनेस टेस्ट? बारिश पे डाली जा रहे हैं, आप इंडोर ले लो भाई। नहीं, अब मोहसिन नकवी साहब ने आकर तो फिटनेस चेक नहीं करनी है ना। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने एक उनको इख्तियार दे दिया है। चेयरमैन का इख्तियार है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। क्रिकेट का तो आप वो जाके फौरी कह सकते हैं कि भाई ये कराओ वो कराओ। सिलेक्शन कमेटी का रोल नहीं है। आप देखें, फिटनेस टेस्ट नहीं हुए, अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं अनाउंस हो रहे? इसलिए नहीं अनाउंस हो रहे कि आपके फिटनेस टेस्ट नहीं हुए। प्लेयर्स ही इंजर्ड हैं आपके। प्लेयर्स इंजर्ड नहीं है आपके प्लेयर्स। आप देखें कि वो जो अब चैंपियंस कप है उसके लिए आजम खान है ही नहीं है कि जी वो फिटनेस पे पूरा नहीं उतरते। नहीं तो वो तो होने ठीक है, मुख्तलिफ एनओसी नहीं प्लेयर्स को दिए गए। आपके बिग बैश में ये हाल हो गया, पूरी दुनिया में आप लोग इस तरह अपना बोर्ड का आपने ये इमेज बना दी है कि आपकी पूरी दुनिया में जो लीग्स होती हैं
उसमें बेचारे वो बिग बैश में सिर्फ एक खिलाड़ी पिक हुआ है, उसामा मीर, उसके अलावा कोई पिक ही नहीं हुआ।